السلام علیکم, گڈ مارننگ, رائز اینڈ شائن اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. آپ سب کو آج کے پروگرام پاکستان کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں مسکرا ایسے ہی رہی ہوں رینڈملی, مطلب ویسے نہیں خوش ہو سکتا کیا ہے. اچھی بات ہے, مسکرانے سے ویسے بھی آپ کو نیکی ملتی ہے اور آپ خوش رہتے ہیں, اور خوش جب آپ خود آپ کی زندگی جو ہے نا اس کے چند منٹ بھی بڑھ جاتے ہیں. ویری گڈ. دیکھیے انفارمیشن میں اضافہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ جب آپ خوش رہتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد لوگ بھی خوش رہتے ہیں, کیونکہ آپ ان سے کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں بولتے کہ اگلے کا دل جل جائے یا دل آزاری ہو جائے. تو خوش رہنا زندگی میں بہت ضروری ہے. تو رافیہ, کیا پلانس ہے آپ کے؟ دسمبر بھی قریب آ رہا ہے, تو کہاں جانا ہے؟ کوئی ٹرپ ارینج کر رہی ہیں آپ؟ ارینج نہیں میں کر رہی, لیکن خود ڈیفینیٹلی جاؤں گی. میرا آپ کر رہی تھی میرا خیال ہے کوئی فارنرز کے لیے, آئی تھنک نہیں ابھی ڈیلے. اوکے سارے پلانس کیا کچھ بول دیں گے, سارے پلانس نہیں بتانے ہوتے. آئی ایم سو سوری. ابھی چل رہا ہے اس پہ. اوکے فائن. نہیں, اپنا پلان ہے ابھی تو فی الحال. گو سم ویئر ڈیفینیٹلی, کیونکہ سوات میں پچھلے دنوں میں سنو فالنگ ہو رہی تھی, اور ابھی جو ہے آٹم ختم ہو رہا ہے ساری جگہوں پہ. جیسے اب ہنزا میں آٹم تھا, وچ ایکچولی وی مسڈ. ہم لوگ ایک سال سے ویٹ کر رہے تھے کہ آٹم آ رہا ہے, ہم لوگوں نے دیکھنے جانا ہے آٹم. خزاں جو پتے ہوتے ہیں نا ساری یلو, سارا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن وی مسڈ اٹ سم ہاؤ. یہ جو ہو رہے تھے دھرنے ہو رہے تھے, ان کی وجہ سے ہمارا وہ تو اسکپ ہو گیا, لیکن ڈیفینیٹلی دسمبر میں وی ہیڈ اے پلان, اور تب تک سنو فالنگ بھی شروع ہو جائے گی. اور اچھا, میں خود نہیں جا رہی تھی نا, میں خوش ہوئی ہوں, یہ بھی لوگ بھی نہیں گئے, بڑا خوشی ہوتی ہے کہ میں خود نہیں جا رہی, کوئی بھی نہ جائے, لیکن والا سین ہوتا ہے. ناظرین, آج منڈے ہے, اور آف کورس میری اور رافیہ کی گفتگو بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گی. کچھ چیزیں ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہے, یا جس وجہ سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوتا ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں, تاکہ اگر آپ کی لائف میں ایسی کوئی پرابلم آئے یا کوئی ایسا فیز آ جائے تو آپ نے وہاں پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے یا کیسے بہیو کرنا ہے. کیونکہ اکثر جب کوئی پرابلم ہے میں پھنس جاتی ہوں, تو میرے قریبی یہاں پہ رافیہ ہی ہے, تو میں رافیہ سے ڈسکس کر لیتی ہوں. اگر میں ڈسکس نہ بھی کروں تو یہ پیچھے پڑ جاتی ہے, مطلب بتاؤ کیا ہوا ہے, یہ والا سین ہوتا ہے. تو خیر میں بتا دیتی ہوں, کیونکہ کچھ آپ کے قریبی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے اگر آپ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا حل نکل آتا ہے. اگر حل نہ بھی نکلے تو ایٹ لیسٹ آپ کو وہ ایک اسپرٹ مل جاتی ہے, ایک موٹیویشن مل جاتی ہے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ زندگی میں رافیہ ایک بہت ہی خوبصورت ہے, وقت کی ایک خوبصورتی یہ ہے, ہمیشہ بڑے کہتے ہیں وقت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے, یہ اچھا ہو تو بھی گزر جاتا ہے, برا ہو تو بھی گزر جاتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر برا وقت ہو اور وہ رک جائے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی. اور جیسے آپ ارم ایک سائڈ کی مینشن کریے نا بات کہ اف یو فیل ڈاؤن اور سم تھنگ ٹو ڈو شیئر, اسی طرح سے ہم پیرل بات کر رہے ہوتے ہیں دوسرے شخص کی جو کہ آبزرومنٹ ہوتا ہے, جو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. جیسے ارم ہے یا کوئی اور دوسرا بندہ ہے, somebody is in some kind of a situation, اور جس کے ساتھ آپ ایک عرصے سے رہ رہے ہیں, تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے اگر اس بندے کے بہیویئر میں کوئی چینجز ہیں, اور اس کے بہیویئر میں کیوں چینجز ہیں. آپ کو اس چیز کو ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیے کہ اچھا یہ بندہ کیوں اس طرح سے بہیو کر رہا ہے, اس سے اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو اس کی لائف میں چل رہا ہے. سو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یو شوڈ ٹاک ٹو دیٹ پرسن. اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کسی چھوٹی سی بات سے ہو سکتا ہے بندہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے. بالکل. اور رافیہ, آپ کی بہن بھائی ہوں, آپ کے دوست یار ہوں, آپ کے پیرنٹس ہو یا آپ کے قریبی لوگ ہوں, آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی لوگ ہوں, ایک چیز ضرور ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی کس بات سے, آپ کی کس بیہیویئر سے, یا آپ کے کیسے ریئیکٹ کرنے سے اگلے پہ کیا اثر ہوگا. یہ سب سے بڑی جھوٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مس بہیو کریں اور اس کے بعد آپ کہیں انٹینشنلی نہیں کیا نا. اور دوسری بات یہ جو ہم بہت کامن دیکھتے ہیں, میں تمام رشتوں کی بات کر رہی ہوں, میں دوست یار جو آپ کے قریبی لوگ سب کی بات کر رہی ہوں. جب آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا بیہیویئر چینج کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب آپ یہ کہتے ہیں نا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ کو زیادہ ہرٹ کرتا ہے کہ ایک بندہ ایک تو آپ کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے. مس بہیو مینس کہ اپنا بہیویئر چینج کر لیا, جو آپ سے پیار محبت سے لوگ رہنے والے ہیں یا بہن بھائی ہیں, تو ایک دم سے وہ کہیں کہ آپ سے خاموش ہو جائیں, آپ سے بات نہ کریں, آپ کو اس طرح سے ریپلائی نہ کریں, ہر چیزیں اوور آل انٹینشنلی کر رہے ہوں, لیکن پریٹینڈ ایسے کریں کہ انٹینشنلی ہو رہا ہے یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سو دیٹ از کائنڈ آف that's not fair at all. کیونکہ ہمارے شو میں جتنے ماہر نفسیات آتے ہیں, ہماری ڈسکشن شو کے بعد بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ینگسٹرز جو زیادہ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ پہلے ان کو اپنے ساتھ اتنا اٹیچ کرتے ہیں, ماں باپ بھی سب لوگ انٹینشنلی ان کو وہ سارا کر رہے ہوتے, لیکن ایک دم سے سڈن آپ ان کے ساتھ بہیویئر چینج کر لیتے, پھر ان کو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے نا. اسی طرح کی بہت اور بھی پوائنٹس ہیں, مطلب یہ ایک وجہ میں بتا رہی ہوں, بہت سی وجوہات ہیں. تو آپ کسی کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ پلے مت
मत करिए, सबसे बड़ा क्राइम है मेरी नजर में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई क्राइम है नहीं। आप किसी की मेंटल हेल्थ के जहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात आती है वहीं पे इमोशनल हेल्थ की भी बात आती है, जिसको हम समटाइम्स इग्नोर भी कर देते हैं। इमोशनल हेल्थ भी इज रियली इंपॉर्टेंट। इमोशनल हेल्थ में जैसे आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अब ये इमोशनली अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपने अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना और किस तरह से फ्लो में लेकर आना है। ये दोनों चीजें जो है ये साथ में मैटर कर रही होती है। हम हमेशा फिजिकल हेल्थ पे जैसे बात करें तो फिर हमने मेंटल हेल्थ पे भी अब पिछले 8 से 9 महीनों में वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट मेंटल हेल्थ एज वेल, क्योंकि दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ इमोशनल हेल्थ की जब बात आती है ना वो भी समाव कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं। इमोशनल हेल्थ की जब बात करें ना तो वो इसी तरह से हो रही होती है जैसे कि मैं बहुत ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा वो एक अच्छे मूड में हो गई और आपसे एक एक्स्ट्रा लव वाली सिचुएशन में, अब ये एक्स्ट्रा में चले जाना ना, एक्सट्रीम पे चले जाना, वो भी एक फिर एकदम से मैं एग्रेसिव हो गई हूँ बहुत ज्यादा, आपसे बहुत ज्यादा उस स्टेट में चले जाते, मतलब कि अब दोनों स्टेट्स में आप जब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं सो दैट्स नॉट फेयर। यू हैव टू बी in the mid of your emotions and you have to be like you should have a control on your emotions as well। तो जहाँ पे mental health की बात कर रहे होते हैं ना वहीं पे emotional health भी आती है, उसको भी चैनलाइज करना बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, और इस पे बात करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं या आप इससे गुजर रहे हैं तो काइंडली आप कोशिश कीजिए अपने करीबी लोगों में से एक बंदा आपकी जिंदगी में जरूर ऐसा होता है जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हो, आपकी मदर हो, आपके फादर हो, या आपके करीबी लोगों में से आपके फ्रेंड्स हो, क्योंकि कोई ना कोई एक शख्स ऐसे जरूर होता है ना जिसपे आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आजकल इशू होता है कि अगर यार मैं किसी को कोई बात बता दूंगा, हो सकता है वो थोड़ा जजमेंटल हो जाए, मेरे बारे में नेगेटिव सोचना शुरू हो जाए, ये मुझे कहे कि यार तुम तो बड़ी अजीब सी बंदी हो, ये बंदे हो। तो जनाब आपकी लाइफ में जो भी आपके करीबी लोग हैं उनसे चीजें जरूर डिस्कस किया करें, क्योंकि जो मुश्किल वक्त जो होता है उसके बाद आसानी जरूर होती है। जब आप इस पे ट्रस्ट आपका वो होता है ना, तवक्कुल आपका वो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं और आप फिर सोचते हो कि यार मैंने ऐसा वक्त भी गुजारा था, कभी मैं इस तरह से भी बिहेव करती रही हूँ या करता रहा हूँ। तो ये वो चीजें जिस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारे यहाँ इन चीजों को बहुत इग्नोर किया जाता है, इंक्लूडिंग अस। हम भी समटाइम अपनी मेंटल हेल्थ को या इमोशनल हेल्थ को इग्नोर कर जाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं हम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि बैक ऑफ द माइंड हमारी क्या चीजें चल रही होती है, हम क्या सोच। सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली कहते हैं ना, इफ यूर सेल्फ अवेयर होने का मतलब है कि आपको अपनी क्वालिटीज भी पता है कि अच्छा ये मेरी क्वालिटीज है, और आपको अपनी साथ में खामियां भी पता है कि अच्छा ये मेरी वीकनेस है, इन पॉइंट से मैं यहाँ पे वीक हो जाती हूँ, यहाँ पे ये वो एरियाज है जहाँ मुझे काम करने की जरूरत है। तो अगर आपको दोनों सिचुएशंस का पता है ना, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग राइट, कि अगर आपको पता है कि अच्छा ये मेरी वीकनेस है तो उसको फिर आप देख रहे होते हैं सोल्यूशन के, अच्छा इस पॉइंट पे आके मैं इस तरह का बिहेव कर सकता हूँ, तो आपने खुद को किस तरह से रखना है, या ये चीज है जो मेरे में वीक है, मतलब इस चीज की कमी है तो मुझे इस काम करने की जरूरत है। इफ यू आर सेल्फ अवेयर इट मीन्स दैट यू नो योरसेल्फ, इट मीन्स दैट यू नो द वर्ल्ड। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल जनाब, ये हमारी कुछ बातें थी, हमने सोचा आज आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे हम जरूर बात करेंगे और आगे भी हम करते रहेंगे। कभी कभी हमारे साथ माहिर नफ्सियात जब आएंगे उनसे भी इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि मंडे है और मंडे वाले दिन हम योगा आप लोगों को सिखाया जाता है और योगा किया भी जाता है, और नईम योगी यकीनन हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं हर मंडे होते हैं, आज भी होंगे। आज उनसे भी इस हवाले से भी बात करेंगे, मेंटल हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बहन, अल्लाह का बड़ा करम, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ का बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है। हम आपको पता है कोई वीकेंड ऐसा नहीं जो घर में गुजारे, हमारा वीकेंड जो है वो पिकनिक पे गुजरता है। और आज तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ। नेशनल योगा फेडरेशन पाकिस्तान की मेरी पूरी टीम मेरे साथ है और हम अंदरून सिंध के विजिट पे निकले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली लाड़काना में हमारे साथ उन्होंने सिंधी कल्चर डे पे हमें इनवाइट किया था। सिंधी कल्चर डे वैसे तो 5 दिसंबर को होता है, लेकिन क्योंकि हमारा ट्रिप बना था अंदरून सिंध का तो उन्होंने अभी सेलिब्रेट कर लिया हमारे लिए। जबरदस्त, वेरी नाइस। तो कैसा रहा आपका ये ट्रिप? बहुत जबरदस्त। हम जो है वो लाड़काना में अपने साथियों के साथ रुके, एक नाइट वहाँ पे स्टे किया, फिर दूसरी नाइट हम जो है कल हम लाल शहबाज सुरेंद्र पार्क के वहाँ पे हाजिरी दी और वहाँ से फिर हम तकरीबन नाइट में एक बहुत ही एडवेंचर वाला जो हमने सफर किया, बहुत जबरदस्त एंजॉय किया हमने। रानी कोट एक इलाका है सिंध के अंदर, अंदरून सिंध के अंदर, बहुत हिस्टोरिकल किला है वो, इतना हिस्टोरिकल है किला के उसके बारे में तारीख अभी तक हम नहीं जान सके, इंटरनेट पे भी उसकी तारीख मौजूद नहीं। ये बहुत पुराना किला है और ऐसे खंडरात और ऐसी पहाड़ी इलाके में जहाँ पे कोई किसी किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, ना वहाँ पे बिजली है, ना वहाँ पर कोई PTCL है, ना वहाँ पे कोई सिग्नल आता है, और हमने नेचर को करीब से देखा। यही है नेचर के करीब होना, कि आप टेक्नोलॉजी से कट जाएं।
जैसे अभी आप मूड स्विंग्स की बात कर रही थी, मैं आपको सारा सुन रहा था कि मूड स्विंग्स होते हैं इंसान के, इमोशनल होता है इंसान, कभी कभी इमोशंस में आके बहुत डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं जो आपके, जब आप किसी से ज्यादा तवक्कुआत लगाते हैं, ज्यादा आप किसी से उम्मीदें बांध लेते हैं, तो लाजमी सी बात है कि आप फिर जो है वो डिसअपॉइंट होंगे। जो मूड स्विंग्स हैं, इसको समझने के लिए योग बहुत आसानी के साथ आपकी मुआवनत करता है। जब इंसान किसी के साथ मुआमलत करता है और किसी से एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो कभी भी जो है वो रिलैक्स नहीं रह सकता। योग ये कहता है कि आप जो भी करें उसको सच्ची नीयत के साथ, आप किसी के लिए भला कर रहे हैं और उसकी तवक्कुआत आप नेचर के साथ जोड़ दें। आपको तवक्कुआत, जो मकाफात अमल है, जिंदगी जो दुनिया है, जो नेचर है, ये आपको बाकायदा उसका रिवार्ड देगी। अगर आपने जिसके लिए नेकी की है, जिसके लिए आपको भला कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मैं इसके साथ ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये बिजनेस है, ये आप कोई नेकी नहीं कर रहे, आप लेना देना कर रहे हैं, आप बार्टर सिस्टम कर रहे हैं कि मैं इसको ये दूंगा, मैं ये लूंगा। आप हमेशा दूसरों के लिए जब आप अपने दिल को साफ रखेंगे, नीयतों को साफ रखेंगे, दुनिया के तमाम मज़ाहिब आपको नीयत साफ करना सिखाते हैं। इसी तरह आपकी नीयत साफ हो जाए, इंसान की नीयत साफ हो जाए। नीयत साफ क्या है कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मुझे इसका सिला इससे नहीं चाहिए, इसका सिला मैं किसी अपने जो है वो जिसके लिए कर रहा हूँ उससे मुझे उसके तवक्कुआत नहीं है। जब आप तवक्कुआत को छोड़ देते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स लाइफ गुजारते हैं, आप बिल्कुल नेचर के साथ अटैच होते हैं। जैसे हमने बात अभी रानी कोट की तो रानी कोट में हमने जो रात गुजारी है, इसमें बहुत हमने एंजॉय किया है, क्योंकि किसी किस्म की टेक्नोलॉजी कोई नहीं थी जिससे हम अटैच होके हम पीछे अपने राब्ता करते, या हम दूसरी जो स्ट्रेस है हम उसको साथ लेके चलते। एक बहुत जबरदस्त किस्म की बात मुझे याद आ गई कि एक इंसान जो है वो, जब उसको शौक पैदा हुआ कि मैंने भी जो है वो साधु बनना है, मैंने जो है वो इंसान बनना है, शरीफ इंसान बनना है, तो उसने तलाश की एक साधु की। उसने कहा कि मैं एक ऐसे सूफी के पास जाता हूँ जो मुझे एक दुनिया की टेंशनों से निकाल सके, दुनिया की परेशानियों से निकाल सके। जब वो उसके पास पहुंचे कि जी मैंने भी आपकी तरह जो है वो रिलैक्स होना है, मेंटली रिलैक्स होना है, मैंने खुश होना है, मैं बिल्कुल लम्हा मौजूद में आना चाहता हूँ, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अकेले आना, हालांकि वो अकेले थे फिजिकली। उन्होंने कहा नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आप वो बोझ साथ लेके आए हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग साथ हैं जिनको आपने दिमाग में जगह दी हुई है, आपने अपने साथ इतने लोग इकट्ठे किए हुए हैं, आप कैसे रिलैक्स हो सकते हैं? रिलैक्सेशन तो तन्हाई में है। पहले आप मेंटली तन्हा हो, मेंटली रिलैक्स हो, मेंटली आप जो है वो लोगों के दिए हुए दुख भूल जाएं, परेशानियां भूल जाएं। जब तक आप उन परेशानियों को याद रखेंगे आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। जिसने बुरा किया है उसके साथ बुरा खुद ही हो जाएगा। आपके चाहने से, आपके करने से आप नेचर से कट जाएंगे और उसका बुरा होगा नहीं और आपका बुरा हो जाएगा। आपके जो थॉट्स हैं, जो आप सोचते हैं, आपकी सोच का जो लेवल होता है, ये आपकी जिंदगी पे इफेक्ट करता है। जैसे आप ये देखें कि आज जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी इंसान की तरक्की है, ये सोच है। किसी इंसान को सोच आई तो ये तरक्की हुई, हर इंसान की सोच ने ये तरक्की करवाई है। इस तरह जिस तरह पॉजिटिव इफेक्ट आया सोच का, इसी तरह नेगेटिव इफेक्ट इससे कई गुना ज्यादा होता है। इंसान जब बुरा सोचता है तो वो सबसे पहले उसका नुकसान उसकी बॉडी को होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट आपका ब्रेन अटैच है वो आपकी बॉडी के साथ है, नर्वस सिस्टम के जरिए से। जितना आप प्रेशर लेंगे, जितना परेशानियां लेंगे, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर जंग लग जाएगा, जंग आलूद हो जाएगा और सबसे बड़ा इफेक्ट उसका आएगा, आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप बीमार रहना शुरू हो जाएंगे। जब इंसान बहुत ज्यादा बीमार होता है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और इम्यून सिस्टम जो कमजोर होता है उसकी असल रीजन आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिफ्रेश ना होना है। आपका नर्वस सिस्टम जब तक फ्रेश नहीं होगा बीमारियों से आप बच नहीं सकते। जब तक आप परेशानियों में रहेंगे आपका इम्यून सिस्टम जीरो हो जाएगा। जितना आप खुश होंगे आपका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा हो जाएगा। आपने देखा जब कभी अचानक खुशी मिलती है तो सारी बीमारियां भूल जाता है इंसान। बहुत ज्यादा बीमार इंसान, बहुत ज्यादा परेशान इंसान, जब अचानक खुशी मिलती है वो पूरा दिन या कई दिन तक उसको जब एहसास नहीं होता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहे थे। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि आपके इम्यून सिस्टम का ताल्लुक आपके जहनी खुशी के साथ है, आपके जहनी रिलैक्सेशन के साथ है और आपके मूड के साथ है। और मैं इसको यूं कहूंगा कि जिंदगी तो एक मशरूब की तरह है, और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि इस मशरूब का जायका इंसान खुद बनाता है। ये इंसान के कंट्रोल में है, इसका जायका नमकीन करना है या मीठा करना है।
ग्रेट, बहुत खूबसूरत बात। जिंदगी एक दरिया की मानत है, दरिया कभी रुकते नहीं, जो रुक जाए वो झील बन जाती है और झील के पानी से हमेशा स्मेल आती है। दरिया का पानी चलता जाता है, शराब करता जाता है और पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। आज बहुत मजा आया बात सुन के। और जैसे आपने कहा कि जब आप किसी से मोहब्बत करें या कोई भी उसके लिए बेहतर करें, आप उससे उम्मीद ना लगाएं कि वो भी आपको, वो तो एक तजारत हो जाएगी ना। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं या मोहब्बत करते हैं या अच्छे से कुछ भी पेश आ रहे होते हैं या हेल्प कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है ये भी शख्स हमें उसी तरह से ट्रीट करे। इस वजह से मसाइल भी आते हैं। बिल्कुल ऐसी। और रेस्ट अदर देन दैट जितनी भी चीजें नईम ने मेंशन की, वो सारी वो चीजें जो आपको बेसिकली योगा सिखा रहा होता है। आपने अपने माइंड का कनेक्शन जो है अपनी बॉडी से किस तरह से करना है, आपकी इम्यूनिटी किस तरह से, इनफैक्ट मेंटल रिलैक्सेशन है तो इम्यूनिटी किस तरह से बूस्टअप होती है, सारी चीजें योगा डेफिनेटली आपको सिखा रहा होता है। और आज नईम बताइएगा कि हम योगा में क्या सीख रहे होंगे। मोहब्बत, हम आज की मोहब्बत को तजारत समझेंगे, ये मोहब्बत नहीं है। आज हम तजारत करते हैं मोहब्बत के नाम पर। जी बिल्कुल। और हाँ, ये तजारत हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। और यही तजारत अगर आप जो है वो अपने नेचर के साथ कर लें, अल्लाह के साथ कर लें, तो आपको कई गुना इससे बढ़ के मिल जाएगा। ये तजारत अल्लाह के साथ कर लें, जिसके साथ आप कोई भी नेकी करें उसका सिला आप अल्लाह के साथ जोड़ दें, नेचर के साथ जोड़ दें। कुदरत आपको इतना भला करेगी कि आप की आने वाली नस्लें जो है वो एंजॉय करेंगी। इतना इफेक्ट आता है जब आप नीयत के साथ होते हैं। और ये कैफियत कैसे हम बना सकते हैं, इसका ताल्लुक मेंटली फ्रीक्वेंसी के साथ है। 4 फ्रीक्वेंसीज हैं आपके ब्रेन की, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। आप फ्रीक्वेंसी को कैसे नीचे लेके आ सकते हैं, इसका ताल्लुक आपके रेजोनेटर के साथ है, आपके लहजे के साथ है। जिस इंसान का लहजा सख्त होगा उसका ब्रेन कभी भी सॉफ्ट नहीं हो सकता। जिस इंसान के अल्फाज सख्त होंगे, जो लफ्ज सख्त बोलता होगा, लफ्ज नेगेटिव बोलता होगा, चाहे हंसी मजाक में बोलता हो, कहेगा मैं तो मजाक कर रहा हूँ, उसका दिमाग कभी भी फ्रेश नहीं हो सकता, उसका दिमाग कभी भी लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ सकता, वो पुरसुकून नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले तो अपने अल्फाज को चूज करें। क्या आपने पॉजिटिव बोलना है, अपने लहजे को सॉफ्ट करें। आपने किसी को आपने बुरे अल्फाज नहीं बोलने और बुरा लहजा नहीं अपनाना। जब आप अपनी इसकी ट्रेनिंग कर लेंगे तो आप मेंटली वैसे ही सुकून में चले जाएंगे, आपकी मेंटली फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी। आपका रेजोनेटर जब तक पेट पे नहीं आएगा, रेजोनेटर, आप पुरसुकून नहीं हो सकते। 4 रेजोनेटर जो मैंने बात की आपके, एक पेट से चलता है, एक सीने से चलता है और एक गले से चलता है और एक नाक से, और 5वां जो है वो बहुत ही खतरनाक है, जो चीख के बोलते हैं, वो आपके यहाँ 3rd आई पे चलता है। ये चीख के बोलने वाला जो रेजोनेटर है, ये इंसान को बहुत खतरनाक हद तक जो है वो दीवाना बना देता है, पागल बना देता है। और अक्सर जब इंसान चीख के बोलते हैं वो अक्सर जो है वो पागल ही होते हैं। उनकी जो अल्फाज की कोई वक़्त नहीं होती, उनके अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं होती, उनके अल्फाज को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और जो सबसे सॉफ्ट आपका रेजोनेटर है वो पेट का है। वो शिफ्ट कैसे होता है, आपका जब तक सांस पेट से नहीं चलेगा, आप रेजोनेटर आपका पेट में नहीं आएगा, आपका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी सॉफ्ट नहीं हो सकती। आप कभी देखिएगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पैदा होते हैं और कई सालों तक, 3 से 4 साल तक उनका सांस पेट पे चलता है। जब वो सांस लेते हैं तो पेट हिलता है, पेट बाहर आता है, जब सांस निकालते हैं पेट अंदर दबता है। इसको योग ने नाभि प्राण कहा है। जब इंसान दुनिया में खो जाता है, मेंटली फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेता है, तो उसका सांस ऊपर उखड़ जाता है, सांस सीने के ऊपर की हद तक रह जाता है, जिससे फिर नुकसान ये होता है कि आपके लंग्स की जो तय है वहां तक ब्रीदिंग आपकी नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंचता, फिर आपके ऑक्सीजन लेवल लंग्स की तय तक नहीं पहुंचने की वजह से आपके ब्लड की सफाई नहीं हो पाती, आपके ऑर्गन सही तरह काम नहीं कर पाते। आप सिर्फ मेंटली रिलैक्स हो जाएं तो आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाएगा। कभी आपने किसी को गहरी नींद सोए हुए देखा हो, जब बहुत गहरी नींद कोई सोया होता है तो उसका ब्रेन बंद हो चुका होता है, मेंटली फ्रीक्वेंसी नीचे आ चुकी होती है, तो उसका सांस भी लंबा पेट से चलना शुरू हो जाता है, वो नेचुरल ब्रीदिंग पे आ जाता है। ये आर्टिफिशियल ब्रीदिंग हमारी इसलिए हुई है कि हम मेंटली बहुत फैल चुके हैं। वही बात हमने बहुत सारे लोगों को अपने दिमाग में रखा हुआ है, हम अपने दिमाग से लोगों को निकालते ही नहीं है, लोगों के दिए हुए दुख निकालते ही नहीं है। लोगों ने सुख भी दिया है, उसको कभी याद करके देखें। आपके साथ लोगों ने अच्छा भी किया, जिस इंसान ने बुरा किया आपके साथ, कभी जिंदगी में उसने अच्छा भी किया होगा, लाजमी अच्छा किया होगा। आप अच्छाइयों को क्यों नहीं सोचते, अच्छा किया होगा तो क्यों नहीं याद करते? ये जो अच्छा किया हुआ याद कर लेंगे तो इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका सांस नॉर्मल रहेगा। जितना इंसान खो जाएगा उसका सांस उखड़ जाएगा, सीने के ऊपर की हद तक आ जाएगा। कभी नोट कीजिएगा, हम सांस जो लेते हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, सीने पे रह जाता है, सीने के ऊपर वाले हिस्से पर। क्लेविकॉलर इसको जो कहते हैं, यहाँ पे आपके सांस रुक जाता है।
یہ آپ کا سانس رک جانا یہاں پر یہ آپ کی انہیلدی ہونے کی سب سے بڑی قسم ہے. جب تک آپ سانس کو پورا نہیں لیں گے, آپ کا فیول آکسیجن ہے, آپ کا فیول ڈائٹ نہیں ہے. ڈائٹ کے بغیر آپ 40 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں, آپ کو موت نہیں آئے گی, لیکن آکسیجن کے بغیر آپ 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسانی جسم کی جو فیول ہے وہ آکسیجن ہے. تو ہم نے آکسیجن کو چھوڑ کے کھانے پینے پہ توجہ دے دی ہے, جس کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو گئے ہیں. آپ کے برین کو جو گلوکوز چاہیے وہ اونلی 20% چاہیے, 80% آکسیجن چاہیے جس سے برین چلتا ہے. ہم نے 80% حصے کو چھوڑ کے 20% پہ فوکس کر دیا ہے. ہم 80% گلوکوز دے رہے ہیں, اسی لیے ڈائبٹیز ہے, اسی لیے موٹاپا ہے, اور 20% آکسیجن لے رہے ہیں, شاید 20% بھی نہیں لے پا رہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنے دوست جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, میرے بھائی میری بہنیں, یہ سارے آکسیجن پہ فوکس کریں اور لمبا سانس لیا کریں. اس کی بڑی ایک عام ٹیکنیک میں ابھی ڈسکس کروں گا جس سے آپ کو سب کو سانس لینا آسان ہو جائے گا. کبھی آپ لیٹ جائیں سیدھے, میں ابھی آپ سامنے لیٹتا ہوں, لیٹ کر اپنی لیگس کو فولڈ کر لیں. جب آپ لیگس کو فولڈ کر لیں گے تو آپ کا یہ پیٹ والا حصہ نرم ہو جائے گا. اب آپ سانس لیں گے آٹومیٹکلی آپ کا سانس پیٹ میں آ جائے گا. اگر آپ ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے مسل کھچ جاتے ہیں. تو پیٹ کے مسل کھچ جانے سے آپ کی سانس کبھی بھی پیٹ پہ نہیں آئے گی, وہ سینے میں آ جائے گی. تو اس کی پریکٹس کیا کریں, لیگس فولڈ کر کے سیدھا زمین پر لیٹ جائیں تو سانس لیں اور آپ کا پیٹ ہلنا شروع ہو جائے گا بغیر مشقت کے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سافٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ سانس پیٹ سے لینا شروع کر دیں, آپ دنیا کے سافٹ ترین انسان بن جائیں گے. آپ کا لہجہ سافٹ ہو جائے گا, آپ بالکل محبت والے لوگ ہو جائیں گے. اگر آپ کا سانس باقاعدہ بچے کی طرح پیٹ پہ آ گیا, کبھی آپ نے بچے کو دیکھا جو چھوٹا بچہ وہ کبھی کسی کے ساتھ غصے سے بولا ہو, وہ کسی کے ساتھ لڑتا ہے تو فوراً صلح کر لیتا ہے. وہ اس کو نہ جوڑنے کی کوئی ہے کہ میں نے کل کو کیا جوڑنا ہے, فیوچر سے کٹا ہوا ہوتا ہے. وہ اس کو پریزنٹ لمحہ موجود کی اس کی لڑائی ہوتی ہے, لمحہ موجود کی صلح ہو جاتی ہے. بچے کی 5 خاصیتیں جو نبی کو بھی پسند تھی, حضور نے 5 خاصیتوں کا ڈسکس کیا کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں. وہ یہی تھی, ان کا لب الباب یہی تھا کہ یہ نہ اس کو یہ گھر بناتا ہے مٹی کا, اس کو گرا دیتا ہے, اس کو کل کی فکر نہیں ہے, یہ نہ لڑتا ہے صلح کر لیتا ہے فوراً, کبھی بغض نہیں رکھتا. اور یہ جب انسان پیٹ پہ سانس لے آئے گا وہ آٹومیٹکلی بچے کی کیفیت پہ چلا جائے گا. جب بچے کی کیفیت پہ چلا جائے گا تو اس کے دل سے بغض ختم ہو جائیں گے, لوگوں کے دیے ہوئے دکھ بھول جائے گا, فوراً بھول جائے گا. جیسے بچہ صلح فوراً کر لیتا ہے, لڑائی کرتا ہے صلح کر لیتا ہے, تھوڑی دیر بعد بچے آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے. ابھی لڑ رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد دوبارہ اکٹھے نظر آئیں گے. تو یہ صرف اور صرف کمال ہے آپ کی آکسیجن کا نابی پہ آنے کا. جیسے ہی آپ نابی پہ اپنی سانس کو لے آئیں گے, ناف کے اوپر سانس کو لے آئیں گے, آپ کے دماغ کا جو فریکوینسی ہے وہ بالکل نیچے آ جائے گی. آپ جو لڑاکو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, آپ کی لڑنے کی کیفیت جو نکل جائے گی. تو یہ بڑی بہترین بریدنگ ہے. اگر آپ اس بریدنگ پہ آ جائیں تو یہ بڑی کمال کی بریدنگ ہے. اس سے آپ کے جو مینٹل جو ڈس آرڈرز ہیں, ایموشنل ڈس آرڈرز, جو آپ کے ایموشنز میں آ جاتے ہیں, آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں یا آپ سینٹیمنٹس میں چلے جاتے ہیں, تو یہ آپ اس سے نکل آئیں گے. آپ بالکل لمحہ موجود میں رہتے ہوئے, اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے, برین کی فریکوینسی کو آپ نیچے لاتے ہوئے بڑے اچھے فیصلے کر پائیں گے. آپ کے اچھے فیصلے آپ کے فیوچر ہیں, آپ کے پریزنٹ کے اچھے فیصلے آپ کا فیوچر بنائیں گے. اگر آپ کے پریزنٹ کے اچھے فیصلے نہیں ہوں گے تو آپ کا فیوچر کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. فیوچر کا تعلق پریزنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس انسان کا پریزنٹ اچھا ہے اس کا فیوچر لازمی اچھا ہوگا. جس انسان کا پریزنٹ اچھا نہیں ہے اس کا فیوچر کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اگر وہ فیوچر کو سوچتا رہے گا وہ پریزنٹ کو بھی خراب کر لے گا. تو جب لمحہ موجود ہے, اس کی خوشحالی, لفظ بڑا پیارا ہے, خوشحال. جو حال میں خوش ہے وہی فیوچر میں خوش ہوگا, جو حال میں خوش ہے وہی فیوچر میں خوش ہوگا. تو ہمیں جو ہے وہ سانس کی ترتیب کو سمجھ لینا چاہیے. اگر آپ بچے والی بریدنگ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا, آپ کبھی پریشان نہیں ہوں. ارے گریٹ, بہت ہی زبردست. بالکل آج اتنا خوبصورت آپ نے لیکچر دیا نا بریتھ کو لے کے, اور ہماری زندگی میں جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کو لے کے, اتنا اچھا لگا ہے. نہیں, کچھ ایکسرسائز اگر آپ نے کروانی ہے کیونکہ وقت کم ہے, میں چاہ رہی ہوں آپ کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ موجود ہے, تو کچھ ایکسرسائز بھی آپ کرواتے چلے ساتھ ساتھ. جی, میری ٹیم بھی ساتھ کرے گی. ابھی ایک پوز ہم کریں گے جو آپ کو باقاعدہ آپ کے موڈ سوئنگز کو ختم کرتا ہے. اور وہ پوز اگر کہہ لیں کہ جس کو خودکشی کا شوق ہو جائے, کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم خود ہی کچھ کر لیتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں. یہ سوسائڈ ٹینڈنسی کو کم کرتا ہے یہ پوز. یہ اس کو آپ ڈیلی کریں, بہت آسان بھی ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. اس میں ایج کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بوڑھے بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں. آپ بالکل بیڈ پہ لیٹ جائیں تو بھی آپ اپنے پاؤں کے تلوے ملا لیں, اس کو بٹر فلائی پوز کہتے ہیں. یہ جتنا زیادہ کریں گے اس سے آپ کا موڈ خوشگوار ہوگا.
ये मूड को खुशगवार करने का पोज है। बटरफ्लाई पोज है ना ये? हाँ। जी जी, बटरफ्लाई पोज। ये राफिया भी अक्सर करती है। ओके। आई नो। आप बटरफ्लाई आप जो है वो पोज करते हैं तो आपके मेंटली कभी भी आप डिसऑर्डर नहीं होते, मेंटल रिलैक्स रखता है आपका। इसमें आप 5 मिनट तक कर लें डेली, 5 मिनट बहुत हैं। ये अगर आप 5 मिनट करते हैं तो आपका मूड बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपको चीजें अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी, आपको लोग अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों की अच्छाइयों को देखना शुरू हो जाएंगे। अब कितना इसमें कोई मुशक्कत तो नहीं हो रही। और इसके अलावा मैं एक मुद्रा भी डिस्कस करना चाहूंगा। एक मुद्रा है जिसका नाम है हंसी मुद्रा। ठीक है। हंसी मुद्रा अगर आप करते हैं तो आपका मूड बहुत बेहतर है। हंसी मुद्रा उसके नाम से ही जाहिर है, हंसी, क्योंकि उर्दू जुबान जो है ना ये काफी जुबानों का मिक्सचर है। तो हंसी संस्कृत का लफ्ज जरूर है लेकिन हंसी का मतलब हंसी है। हंसी मुद्रा ये आपको खुश रखता है। पहली 3 उंगलियां अंगूठों के साथ मिला लें, छोटी उंगली को अलग कर दें, बस हल्का सा टच करके बैठ जाएं या लेट जाएं, वॉक करते हुए नहीं करना आपने। पहले 3 पोर उंगलियों के अंगूठे के पोर के साथ आप सिर्फ टच कर लें। ठीक है। ये कितना आसान है। इसको कम से कम 5 मिनट कर लें डेली और मैक्सिमम 1 घंटा। ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटा अगर आप ये करना शुरू कर दें तो आपका मूड ऑटोमेटिकली बेहतर रहना शुरू हो जाएगा, आप खुशगवार मूड के मालिक बन जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। 2 पोजेस आज हमें नईम ने बताए हैं, एक तो ये मुद्रा बताया और दूसरा हमें बटरफ्लाई पोज बताया। अगर आप ये करते तो डेफिनेटली आप खुश रहने वाले लोगों के जुमरे में आ जाएंगे, बिकॉज दैट्स गोना हेल्प यू टू लोअर योर मूड, और वो बेहतर करने में, एलिवेट करने में भी हेल्प आउट कर रहा होता है और उसके मूड स्विंग को भी रिजॉल्व कर रहा होता है। बिल्कुल जनाब, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। और जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि इट्स मंडे, एज वी ऑलवेज से कि हम लोग तो मंडे को योगा कर रहे होते हैं, उसके साथ ही सितारों के हाल के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि आपका ये पूरा वीक किस तरह का गुजरेगा। जनरली भी आपको बता रहे होते हैं आपके स्टार्स के हवाले से, और इस वीक के हवाले से भी बता रहे होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉल, और कॉल करने का तरीका इज वेरी सिंपल। व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो हमारा नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, आपको नंबर डायल करना है एंड यू कुड गेट योरसेल्फ कनेक्टेड टू अस, और फिर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो आप बआसानी हमसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो भी पूछना होगा आप बआसानी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान दाऊद जी, दाऊद माहिर इल्मे नजूम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने प्रोग्राम का आगाज वैसे ही माशाल्लाह योगा से कर दिया है, और सेहत जिसकी अच्छी होती है माशाल्लाह फिट रहते हैं, सारे काम उसके ठीक रहते हैं, सितारे भी उनके ठीक ही रहते हैं जिनकी सेहत अच्छी हो। जरा स्टार्ट का आगाज करते हैं, साथ साथ कॉल्स भी ले रहे होंगे और कोशिश करेंगे हम पहले वाले आधे घंटे में ज्यादा कॉल्स ले लें और लास्ट वाला जो आधा घंटा होगा उसमें स्टार्स कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप पहला स्टार्ट शुरू कर लीजिए और साथ साथ जैसे जैसे कॉल्स आ रही होंगे साथ हम कॉल्स भी ले लेंगे। जी जी, हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टार है एरीज बुर्ज हमल वालों का 21 मार्च से 20 अप्रैल तक उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। एरीज वाले इस वीक में आप लोगों का थीम ऑफ द वीक, एक तो आपने एरीज वालों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, अपने जो भी मामलात करने हैं उसमें टू दी पॉइंट बात करनी है, और दूसरा ये कि अपने दिल की बात, राज की बात कोशिश करें किसी से ना करें। वो वैसे कोई स्टार वाले भी ना करें? नहीं, वैसे कई लोग कर लें तो मशवरा कर लें तो अच्छा होता है, मशवरे में आपको पता खैर होती है जी। और मशवरा तो दीवारों से भी लोग कर लेते हैं, मगर इस वीक की बात हो रही है एरीज वालों की, तो एरीज वालों के बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि जो माइंड में बात चल रही है, जो चीजें चल रही हैं वो काफी हद तक इनको फायदा दे सकते हैं, थोड़े से उदास हो सकते हैं, गमगीन हो सकते हैं, और जो आपके मामला चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, मगर अल्लाह के ऊपर भरोसा रखेंगे तो इंशाल्लाह चीजें ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। ब्लैक कलर की चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी और ब्लैक कलर की किसी चीज का सदका भी दे सकते हैं, और मंगल का दिन जो है वो सदके के तौर पे आपके लिए आ सकता है। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए
आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके एरीज वाले भी पी सकते हैं इस वीक। जबरदस्त। ठीक हो जनाब गया। बढ़ते अगले स्टार की जाने। हाँ जी। और अगला स्टार है राफिया टॉरस। जी, हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है टॉरस। टॉरस वालों का हम थीम ऑफ दी वीक देखते हैं कि टॉरस वाले इस वीक में क्या कर रहे हैं। थ्रू टैरो कार्ड कर रहे हैं हम आपका हॉरोस्कोप टॉरस वालों का इस वीक का थीम ऑफ दी वीक। बिल्कुल जनाब, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और आपकी कॉल जो होगी हम आपका स्टार आपके मुताबिक बताएंगे। लास्ट वीक एक लड़की ने कॉल की थी, डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि जी मैं हमेशा स्टार सुनती हूँ लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा आप बता रहे होते। तो फिर उन्होंने स्पेशली उनका नंबर और नाम लिया और उन्होंने कहा मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको आपके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन हम जब बता रहे होते हैं ओवरऑल स्टार जनरल बता रहे होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होता। समटाइम किसी के साथ वैसा हो रहा होता है, समटाइम वैसा नहीं हो रहा होता। ऐसे ही दाऊद जी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, हर बंदे का जिस तरह स्टार्स डिफरेंट होता है, इसी तरह हर बंदे के नाम के अदाद डिफरेंट होते हैं, वालदा के नाम के अदाद डिफरेंट होते हैं और टाइम ऑफ बर्थ अलग होता है, प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों का बड़ा इफेक्ट होता है। इसीलिए तो लोग जो है वो पर्सनल जो है वो जायचे की तरफ जाते हैं कि आपका जो पर्सनल जायचा है कि आपका नाम क्या है, न्यूमरोलॉजी से आपका आदत क्या बनता है। फिर लोग इसके ऊपर इस्तिखारा भी करते हैं, स्टार से भी देखते हैं और वालदा के नाम की अदाद को जमा करके उसको फिर तकसीम करके भी देखते हैं कि मामला क्या होते हैं। इसलिए ये जो होता है हॉरोस्कोप, ये एक किस्म का जर्नल होता है। मगर क्योंकि हम इस वक्त जो है मल्टी जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, अगर आप लोगों अपनी ख्वाबों की तवील पूछना चाहते हैं, अगर आप लोग अपना जो है वो जायचा बनाना चाहते हैं, या आप लोग अपना वीकली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप या कुछ भी अपने मतलब इंफॉर्मेशन रूहानियत से मुतल्लिका और मैजिक के मुतल्लिका जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, हम सारी इंफॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देंगे। और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आप लोग अपना जनरल हॉरोस्कोप देखते हैं और अगर आप लोग अपना स्पेसिफिक जब देखेंगे तो उसमें आपको टू दी पॉइंट बातें सामने आएंगी। इसी तरह जिस तरह हर बंदे के हाथों की लाइनें डिफरेंट होती हैं, मगर अगर हम किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हाथों की लाइनें क्या काम करती हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें जो बेसिक लाइनें हैं वो तो मौजूद होती हैं। जैसे दिल की लाइन भी हर किसी की मौजूद है, दिमाग की लाइन भी मौजूद है, हाथों की लाइनों के जो फैक्ट हैं वो बेसिक मौजूद है, मगर उसमें जो डिफरेंस है वो आपके हाथ को देख के पता चलता है। इसी तरह फेस रीडिंग होती है। फेस रीडिंग में किसी का नाक जो है पतला होता है, वो पतला नाक क्या कहता है, आपका चेहरा जो है माथा चौड़ा, उसकी अलामात क्या होती है, माथे के ऊपर कितनी लाइनें हैं, कितने साल उम्र होती है। इसी तरह फेस रीडिंग भी बताई जाती है। आपका डिपेंड कर होता है, हर पर्सन का वेरी कर रहा होता है। ओवरऑल हम जनरल बता रहे होते हैं लेकिन स्पेसिफिकली डिपेंड कर होता है आपकी पर्सनालिटी पे। दाऊद जी, अगले स्टार के जाने से पहले हम कॉल ले लेते हैं। जाहिदा हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जाहिदा साहिबा, अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो यकीनन हम तक आपकी आवाज ठीक आएगी। हाँ जी मैडम जी, बंद कर दिया। वो मैडम जी मेरे बेटे का नाम मसूद, बिलाल मसूद है जी। ठीक है जी। हाँ जी, उसका मुझे बहुत परेशानी थी, उसके मुताल्लिक मैंने पूछना है। वो आदमी में कलर क्या है, वो कहता मैंने नौकरी नहीं करनी, और उसकी शादी का पूछना है। शादी के मुताल्लिक बताएं, उसकी शादी जो है मंगनी हमने उसकी दुआ नाम है लड़की का, उससे की है। प्लीज बस ये बता दे दुआ। अच्छा, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है जी 21 जनवरी ठीक है 1998 1998। अच्छा दाऊद जी, और क्या डिटेल्स वगैरह चाहिए आपको? बिलाल की वालदा का नाम जाहिदा है। जाहिदा और जी बस ठीक है। चलें ठीक है, बता देते जाहिदा साहिबा। जी, हमारे पास इस वक्त बिलाल मसूद के बारे में हमने बात करनी है। बिलाल मसूद बिन 21 जनवरी 1998 जी। सबसे पहले तो इसकी हम शादी का देखते हैं, जो बिलाल मसूद और दुआ की शादी कैसी रही। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। बिलाल मसूद, हाँ जी, शादी के हवाले से बता रहे होंगे, साथ साथ उनकी जॉब के हवाले से भी उन्होंने पूछा है, तो उस हवाले से भी वो जॉब नहीं करना चाहते, शायद अपना बिजनेस करना चाह रहे होंगे। हाँ, इट्स डिपेंड। वैसे तो अच्छी चीज होती है खुद का बिजनेस करना, लेकिन जॉब करना भी ठीक है। हाँ जी, वो वेरी स्पेशल चॉइस। अच्छा, ये शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बिलाल मसूद की और दुआ की शादी में। क्या माँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम है इसमें। शादी से मुतल्लिका मामलात को क्लियर करने के लिए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। इनके लिए 21 मरतबा रोजाना 21 दिन का अमल करें। शादी से मुतल्लिका भी प्रॉब्लम है, अभी मजीद देखें कि कैसे ये मामला ठीक होंगे, रुकावटें आ रही हैं। अभी बिलाल मसूद की जॉब के बारे में देखते हैं।
जॉब भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, काम करने को दिल नहीं कर रहा है। बिलाल मसूद की जॉब का भी इशू आ रहा है। और अभी देखते हैं कि बिलाल मसूद का पर रूहानी मसला क्या है। बिलाल मसूद जो है ना, वो खुद या इनकी वालदा इनके लिए आयत करीमा पढ़े, ये 119 मरतबा आयत करीमा का अमल करें। चीज़ें रुकी हुई हैं, ये दोनों शोबे जो इन्होंने बताए हैं बिलाल मसूद के दुआ से शादी के, वहाँ भी उनकी प्रॉब्लम आई खड़ी है और जॉब में भी इश्यूज हैं। एक तो ये कि आयतुल कुर्सी जो है वो जो मैंने पहले बताया वो पानी के ऊपर दम करके बिलाल मसूद को पिलाएं। और दूसरा ये दोनों इश्यूज हैं, इनमें मामलात की बेहतरी के लिए 119 मरतबा आयत करीमा अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके पढ़े। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें ठीक होने के चांसेस हैं। 21 दिन का अमल करें। ठीक है, ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। ये अपने भाई का मालूम करना है। उसका नाम है हमाद। 22 फरवरी 1987 रात 12:15 बजे साहिवाल में पैदा हुआ है। मालूम क्या करना है? शादी का मालूम करना है कि ठीक कब है। तक होगी, घर वालों की पसंद से या इसकी, और आगे की जरा इसकी फ्यूचर लाइफ बता दे। अच्छा जी, जी ठीक है। जी उन्होंने अपने भाई के हवाले से पूछा, साहिवाल से इनका ताल्लुक है। हमाद है 22 फेब 1987। जी हमाद के बारे में हम देख लेते हैं। शादी का भी पूछा है ना? जी, हाँ जी, शादी का पूछा है। कह रही लव मैरिज होनी या arrange है ना, होनी देखें है? ऐसे होने चाहिए घर वाले, मतलब वो भी पूरी चॉइस है। वैसे आप उनसे खुद भी पूछ ले, बता देंगे वो कि मैंने पसंद की शादी करनी है अरेंज। हाँ। शादी तो होती हुई नजर आ रही है, मगर शादी डिले है। कोई तकरीबन 7-8 माह का जो है डिले आ रहा है शादी में। मगर चांसेस इस वक्त तो शादी के बारे में बातचीत चल भी रही है, कोई ऑप्शन मौजूद भी है। एक तो भाई का नींद का इशू है, परेशान रहता है भाई शादी से रिलेटेड या अपने मामला से रिलेटेड, और थोड़ी सी परेशानी आई हुई है कि जब शादी की बात होती है तो बात आगे ही बढ़ती जाती है। इस तरह के इश्यूज आए हुए हैं और तकरीबन पहले भी काफ़ी वेट हो चुका है, 7-8 माह का पीरियड लग गया, अब भी वेट आ रहा है। ये है कि इस वेट को ख़त्म करने के लिए आप लोग जो है, भाई जो हमाद है उसके लिए आपको मैं एक अमल बता देता हूँ, वो आप ज़रूर करें। एक तो या हय्यू या क़य्यूम 11 मरतबा, या ज़ल जलाली वल इकराम 11 मरतबा, और दुरूद इब्राहिम जो है वो 11 मरतबा। उसके बाद इनके लिए हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, ये जो है 119 मरतबा और दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ें कि ये जो डिले हो रहा है, ये चीज़ें जो रुक रही हैं, ये जो रुकावट आ रही है, ये ठीक हो जाए। इसको पानी के ऊपर भी इसको पढ़ के दीजिएगा, और ये एक वजीफ़ा है, 21 दिन का अमल करें। इंशाल्लाह ये जो डिले है, ये जो नींद नहीं आ रही, ये चीज़ें रुकी हुई हैं, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी हमारे के लिए। ठीक है। और वैसे चांसेस इस वक्त मौजूद हैं, बातचीत चल रही है, मगर रुकावट आ जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। एक और भी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जाहिदा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। हेलो जी जी। हेलो हाँ जी, जी। हाँ जी जाहिदा, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा, मेरे ख्याल से उनने हमारी आवाज जो है वो मैं बात कर रही हूँ। जी 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 जाहिदा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, मैंने अपने बच्चों के बारे में पूछना है। जी जी, क्या पूछना है? इकरा 8 जनवरी हम्म, 1994 हफ्ते को पैदा हुई थी फैसलाबाद में। अच्छा। और तलहा ठीक है। 14 जुलाई 1997 ये पीर को 1997। झड़मले में पैदा हुए थे। इनके बारे में पूछना है। ठीक है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने 19 जायदा डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइएगा। 1994 है। ठीक है हाँ, जी, ठीक है। डिस्टोर्शन काफी ज्यादा आ रहे हैं, हमारे हम तक भी आवाज क्लियर नहीं आ रही। दाऊ जी, आपको कुछ समझ आ गई है तो काइंडली आप देख लीजिएगा। इकरा के बारे में मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं जी। तलहा के बारे में भी जो है बता देता हूँ। ये देखें, ये अपने ना बच्चों का पूरा ख्याल रखें। इकरा जो है वो अपने जो है दिल की बात, चीज़ें कुछ छुपा के रखती है, उदास रहती है, परेशान रहती है। इकरा वैसे ज़हीन है, अक्लमंद है और स्यारा शम्स से उसका तल्लक है, मगर यह है कि आप उनका पूरा ख्याल रखें।
इकरा को जो है नजर लग जाती है, वैसे पुरकशिश मिलनसार भी है। आप इस तरह करें कि इनको सूरह फलक और सूरह नाज 3-3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 3 दिन इकरा को पिलाएं। और जो अपना आपका बेटा तलहा है वो ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बात जो है वो मुंह के ऊपर कर देता है और कुछ बातें छुपाता है और अपना जो है चीज़ें पढ़ाई में या स्टडी में या कामों में जो है वो तवज्जो सही नहीं देता। उसके लिए आप एक तो रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली, ये आप 11 मरतबा जो है रोज़ाना पानी के ऊपर दम करके पिलाएं। और दोनों बच्चों का तसव्वुर करके आयतल कुर्सी 21 मरतबा जो है 11 दिन पढ़ें, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बच्चे आपके ठीक हैं मगर उनको ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है, आप तवज्जो दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक आपको बेहतरियाँ महसूस हो जाएंगी। ठीक है, ठीक हो गया। हमारे साथ अगली कॉल मौजूद है जी, नादिया जी शेखपुरा से। अस्सलाम वालेकुम नादिया अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप कैसी हैं नादिया? शुक्र है अल्लाह का। मैंने ना अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी नादिया बताएं। शहजाद नाम है उसका जी। 24 नवंबर 2008 की उसकी पैदाइश है, लाहौर की। ठीक है। और दूसरा बेटा है शाहजेब, उसका पूछना है 2011 26 जून उनकी डेट है। अच्छा जी, 26 और जून लाहौर में ही पैदा हुए हैं वो। ठीक है। पढ़ाई के बारे में पता चले। आपका अपना नाम क्या है? नादिया। नादिया ठीक ठीक है, ठीक है जी। ठीक हो गया। नादिया बता देते हैं अभी। शहजाद हैं, एक बेटे का नाम 24 दिसंबर 2008, जो दूसरे हैं उनका नाम शाहजेब है 26 जून 2011, दोनों लाहौर में पैदा हुए। शहजाद के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि शहजाद क्या मामलात हैं शहजाद बिनते नादिया के बारे में। शहजाद थोड़ा सा गुस्सा कर जाता है, शहजाद का गुस्सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा परेशान और स्टडी के ऊपर तवज्जो दें। इसका दिल नहीं करता कि अपनी तालीम जारी रखे, तालीम के ऊपर तवज्जो दें और पूरा ख्याल रखें शहजाद का। और चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं इसकी और जो करना चाहे कर सकता है। वालिदैन का जो है वो फरमाबरदार भी है, बातचीत मानता है, मगर आप उसको स्टडी के ऊपर लेके आए, स्टडी के ऊपर इतना तवज्जो नहीं देता। उसके लिए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 19 मरतबा जो है 7 दिन का अमल करें, पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिलाइएगा। शाहजेब को देखते हैं कि शाहजेब बिनते नादिया के क्या मामलात हैं, उसके कैसे हालात जा रहे हैं। शाहजेब ठीक है बच्चा, माशाल्लाह स्टडी में भी ठीक है, थोड़ा सा डबल माइंडेड रहता है, जो चीज़ें करना चाहता है उसमें जो है वो उसको कन्फ्यूजन रहती है। घर में उसका दिल लगता है, फैमिली को जो है उसमें उठना बैठना पसंद है और उसको ज़्यादा मोबाइल से दूर रखें। बाकी वालिदैन का कहना मानता है, चीज़ें ठीक हैं। मगर शाहजेब के मामलात की बेहतरी के लिए आपको मैं छोटा सा अमल बता देता हूँ। इसकी सेहत का ख्याल रखें और इसके लिए सूरह फातिहा 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 7 दिन ज़रूर पिलाएं, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बच्चों को चोटें वगैरह लगती रहती हैं आपके और नज़र भी लग जाती है, उसके लिए आप जो है रोज़ाना जो है उनके लिए सूरह फलक और सूरह नास कम अज़ कम 11 दिन तो ज़रूर करें, पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पिला दीजिएगा, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती। जी ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, हमारे साथ फरहान है गुजरावाला से। वालेकुम अस्सलाम जी। फरहान क्या पूछना चाहते हैं? से फरहान तलत बात कर रहा हूँ। जी जी फरहान क्या पूछना चाहते हैं? मुझे 2.5 साल हो गए हैं, मुझे जॉब भी नहीं मिल रही, घर वाले शादी के लिए बड़े परेशान हैं। अच्छा ठीक है फरहान, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डिटेल्स मेरी है 10 सितंबर 1989। 1989 2.5 साल से जॉब नहीं मिल रही। जी फरहान है गुजरावाला से। वालिदा का क्या नाम? वालिदा के नाम बता दीजिए। अनीला साहिबा। जी ठीक है जी, देख लेते हैं फरहान ठीक है। फरहान है गुजरावाला से, बस अभी उनके जॉब के बारे में पूछा है ना? हाँ जी, जॉब के बारे में भी पूछा है और जॉब नहीं मिल रही, इस वजह से शादी की वजह से भी परेशान है। फरहान तलत के तो सारे मामलात में डिस्टर्बेंस है और हर चीज़ जो है वो रुकी हुई है, शादी से मुतल्लिका भी और जॉब से मुतल्लिका भी, और चीज़ें रिश्ते आते हैं मगर रुक जाते हैं। लेकिन दी टावर का कार्ड है ये, इनका कार्ड प्रॉब्लम वाला है इस वक्त
اور فرحان سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نماز کی پابندی کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور کسی بلیک کلر کی چیز کا صدقہ دو، کیونکہ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ کام نہیں ٹھیک ہوتا، کہ روحانی مسئلہ بھی لگ رہا ہے۔ کسی بلیک کلر کی چیز کا آپ ٹیوزڈے والے دن صدقہ کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ آپ کو میں 21 دن کا عمل بتاتا ہوں، وہ آپ ضرور کرو۔ اور طبیعت خراب رہتی ہے، دباؤ کھچاؤ کندھوں پہ اسٹریس رہتا ہے، ستاروں کی پوزیشنیں بھی کچھ اسی طرح کی ہیں کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ کام نہیں ہو پاتا، شادی کا ایشو بھی، جاب کا بھی ایشو اسی طرح چل رہا ہے۔ ایک تو یہ آپ 21 دن 319 مرتبہ 319 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عشاء کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا شروع کرو، اور پانی تھوڑا سا پاس رکھ لینا، پانی کے اوپر دم کر کے اس کو لازمی پیو، تاکہ آپ کی جو رکاوٹیں ہیں روحانی یا جو بھی آپ کے معاملات میں ڈسٹربنس ہے وہ دور ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جب آپ کرو گے چیزیں کافی بہتر ہوگی، تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر لیجیے گا، پھر آپ کو آپ کے کاموں سے متعلقہ اور شادی سے متعلقہ عمل بتا دیا جائے گا، وہ ضرور ہو جائے گا۔ خواب میں بھی آتی رہتی ہیں آپ کو الٹی سیدھی خوابیں آتی رہتی ہیں، ہر چیز جس طرح آپ کسی اونچائی سے گر گئے ہیں یا طبیعت خراب رہتی ہے، الجھن رہتی ہے، یہ چیزیں کافی ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہیں، رکاوٹیں کافی دیر سے چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ کریں گے جو میں نے آپ کو عمل بتایا تو کافی چیزیں کھل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ساتھ اگلی کالر موجود ہے عرفان ہے لاہور سے۔ السلام علیکم عرفان۔ جی عرفان، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جس جاننا چاہ رہا ہوں جنرل اس کے بارے میں، ایج ہے میری جی 7 جولائی 7 جولائی جی جی۔ پورا نام کیا ہے فرحان؟ پورا نام عرفان بتائیے۔ حیدر۔ عرفان حیدر، ٹھیک ہے۔ 7 جولائی 7 جولائی۔ عرفان ایئر کیا ہے آپ کا عرفان؟ 88 1988، ٹھیک ہے۔ اور آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جس جنرل جاننا اچھا چاہ ٹھیک رہا ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے، week کا، چلیں اوکے، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں عرفان۔ تھینک یو تھینک یو سو مچ۔ جی جی داؤ جی۔ جی میں عرفان حیدر کے بارے میں دیکھتا ہوں، عرفان حیدر کے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ وہ اسپیسیفکلی کچھ نہیں پوچھنا چاہ رہے، بس لیکن week کا ہی جنرلی پوچھنا اپنے چاہ پورے رہے ہیں، ویک کا start سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی لازمی بتاتے ہیں، لازمی بتائے جائیں گے۔ دیکھیں عرفان حیدر کا سب سے پہلے تو ایشو عرفان بھائی یہ ہے کہ آپ جس کسی سے بھی ہمدردی کرتے ہو نا، وہ آپ کی جڑیں کاٹنے لگ جاتا ہے۔ ہمدرد ہو والدین کے بھی، گھر والوں کے بھی، اور آپ جو ہے وہ بہت زیادہ آئیڈیاز آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کمیونیکیشن کے کام کر سکتے ہو، اور مگر 2-3 چیزیں یاد رکھیے گا، آپ کسی بھی کام کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہو، کام بڑے پرجوش طریقے سے کرتے ہو، مگر جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے آپ کے کاموں کو رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، رک جاتے ہیں، وہ جوش نہیں رہتا۔ مگر یہ ہے کہ آئیڈیاز کافی ہیں، کام کرنے کے لیے کافی چیزیں موجود ہیں، اور مگر چلتے چلتے کاموں میں کہیں نہ کہیں پرابلم موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کام رک جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کے پاس ایک کام آیا ہوا ہے، آپ کے فرینڈ کی طرف سے، دوست کی طرف سے کوئی پیغام ہے، آپ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ضرور جاؤ گے۔ شادی سے متعلقہ بھی چیزیں موجود ہیں، مگر جو چیٹنگ ہوتی ہے، جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس سے آپ بچو۔ جی ٹھیک ہے، لوگوں سے بچو، ویسے تو سب کو بچنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ تب چلتا ہے نا یہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ داؤد جی نمرولوجی ہو سے، جاتا ہے۔ ہاں جی نمرولوجی سے ان کا 2 نمبر بنتا ہے، اور 2 نمبر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس طرح چاند کی سی شخصیت ہوتی ہے، اور پہلے 10-15 دن بڑا جوش اور جذبہ رہتا ہے، پھر اسی طرح مدم ہوتا جاتا ہے، اعتبار کرتے ہیں اور ہمدردی کا پہلے جذبہ build ہوتا کرتے ہے، ہیں۔ مگر بار بار جب بھی ان کو نقصان پہنچتا ہے پھر بھی یہ اعتبار کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ساتھ اگلی کالر موجود ہیں، ساجدہ ہیں ہمارے ساتھ ساہیوال سے۔ السلام علیکم ساجدہ۔ وعلیکم السلام جی سر، ساجدہ، میں نے پوچھنا تھا اپنی شادی کے بارے میں۔ 3 جون 1988 ٹھیک ہے 3 جون ساہیوال میں پیدا ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور شادی کے حوالے سے شادی کے بارے میں بتا دیں، والدہ اور کا اس نام ویک کے بتائیے۔ بارے میں۔ والدہ کا نام بتا رہی ہیں؟ اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ ہاں جی نسیم اختر۔ نسیم اختر۔ اچھا جی، آپ کو بھی بتا ٹھیک ہے دیتے جی، ہیں۔ بتا دیتے ہیں آپ کو۔ جی داؤد جی، انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی لازمی 1 نمبر بنتا ہے ان کا، شمس سے تعلق ہے۔ ویسے ابھی ہم پاس 3 سے جولائی دیکھتے ہیں کہ ساجدہ کی 1988 شادی سے متعلق کیا معاملہ ہے۔ شادی جو ان کی شادی 3-4 رشتے آئے ہوئے ہیں ساجدہ کے، اور مگر شادی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، مگر یہ شادی کے چانسز پیدا ہو جائیں گے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پریشان نہ ہو ساجدہ، اور آپ کو میں پڑھنے کے لیے ایک اچھا سا عمل بتا دیتا ہوں، وہ آپ کریں اپنی شادی کو سامنے رکھ کے۔ سب سے پہلے تو رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پڑھیں آپ آیت کریمہ،
आयत करीमा पढ़ें आप 21 मरतबा 11 दिन, रोज़ाना के ये शादी से मुतल्लिका जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। और कोई बातें आप खुफिया रखती हैं अपनी शादी से मुतल्लिका की चीज़ें या किसी की पसंद है या जो भी आपके मामलात, वो शायद हो चाहे ना हो मगर शादी इंशाल्लाह होती हुई नजर आती है। और शादी को करने के लिए आपको मैं अमल बता देता हूँ। आप सूरह मरियम 2 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद 11 दिन का अमल करें। 11 दिन का अमल करके उसके बाद आप सूरह ताहा पढ़ें, वो भी आप 2 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। उसके बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगला 3 अमल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप 119 मरतबा इशा के बाद अपनी शादी को सामने रख के करिएगा। इंशाल्लाह शादी से मुतल्लिका मामला बेहतर हो जाएंगे। किसी रेड कलर की चीज़ का आप सदका भी दे सकती हैं। थोड़ा सा छोटा गोश्त लेकर उसके ऊपर जो है आप आयतुल कुर्सी पढ़ के 2 मरतबा अपनी शादी की रुकावटें दूर करने के लिए सर से वार कर किसी वीरान जगह पर रखवाओ ताकि ये चीज़ें ठीक हों। क्योंकि डिस्टर्बेंस कुछ रहती है, स्ट्रेस रहती हैं और दबाव और खिंचाव रहता है, जिस्म जो है वो जकड़ा सा रहता है। ये चीज़ें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। आप ज़रूर करिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। हम तब तक एक स्टार कवर कर लेते हैं, टॉरस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा टॉरस के हवाले से बता दीजिएगा। जी, हमारे पास टॉरस 21 अप्रैल से 20 मई तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। टॉरस वालों का जो आगाज़ है इस वीक में वो बड़े अच्छे तरीके से होगा। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगी, मगर कई मामला जिस तरह आपके मुआशी या कैरियर से मुतल्लिका वहाँ थोड़ा सा आप स्टक होंगे। आपको कोई जॉब ऑप्शन आ सकती है, कामों से मुतल्लिका मदद आ सकती है, आइडियाज़ आपके पास काफ़ी मौजूद है और ये आइडियाज़ आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। टॉरस ख़वातीन अपने घर के मामलात में बड़ी मसरूफ़ नज़र आती हैं। तुलबा तालबात के लिए ये भी काफ़ी बेहतर है। आप लोग अपनी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, सर दर्द हो सकती है और स्ट्रेस हो सकते हैं। अपनी नींद को टॉरस वाले ज़रूर पूरा करें। अपने मामलात की बेहतरी के लिए टॉरस वाले इस वीक में या जल जलाली वाली किराम ज़रूर पढ़ सकते हैं 41 टाइम। और अगर आप लोग सदका करना चाहें तो थर्सडे वाले दिन रेड कलर की किसी चीज़ का सदका कर दीजिएगा इस वीक में। बाकी ओवरऑल काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, मगर जो आपके पास ऑप्शन आएगी उसके ऊपर आप सोचते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, आमना है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। हाँ जी, बताइए उसकी डेट ऑफ बर्थ। मेरी बेटी की 2017 20 अक्टूबर है। ठीक है, 20 अक्टूबर 2017। उनका नाम क्या है? मिनाहल नाम है इसका। और मिनाहल। इसके बारे में पूछना था, इसके स्टार के लिहाज से इसका नाम ठीक है? इसकी ना तो सेहत बढ़ती है ना हाइट बढ़ रही है। इसके हवाले से बड़े परेशान है हम। मिनाहल। ठीक है आमना, आपको बता देते हैं आपको। मिनाहल का हमने देखना है कि जो स्टार्स के हवाले से इसका क्या रखा गया नाम ठीक है। तो मिनाहल का देखते हैं कि मिनाहल का स्टार्स के हवाले से जो नाम रखा गया है ठीक। नाम तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं। नाम से मुतल्लिका परेशान ना हो। मिनाहल का 9 नंबर बनता है। मिनाहल को अगर हम सियारा मरीख से देखते हैं और मेहनती है और गुस्सा ज़रूर आ जाता है उसे, ऐसी बात नहीं। बुजुर्गों की ख्वाहिश से ही नाम रखा गया, मगर ये नाम ठीक है। मगर ये है कि इसकी चीज़ें जो डिस्टर्ब हैं वो आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। वो नज़र बद का असर है इसको, और सेहत वीक होती जा रही है। खाती भी है तो वो खाया हुआ इसके ऊपर लगता नहीं है। इसका नज़र बद का असर जो है वो ठीक करवाइएगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं दुआ बता देता हूँ, आप उसको लिख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि मज़हब हर्रहा बरदहा व वसबहा अल्लाहुम्मा मज़हब बरदहा वसबहा, ये दुआ है। अगर ये ना आए तो मैं आपको एक और अमल बता देता हूँ। आपको नज़र बद के लिए वो आप कर लें। एक तो ये कि आप दुरूद इब्राहिम 1 मरतबा, सूरह फातिहा 2 मरतबा और सूरह फल्क और सूरह नास 3 मरतबा अव्वल आखिर पानी के ऊपर आप दम करके इसको 3 दिन पानी पिलाएं। किसी रेड कलर की चीज़ का सदका करें और परेशान ना हो। इसकी सेहत इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। रेड कलर की चीज़ का सदका कैसे कि आप थोड़ा सा गोश्त लेकर उसके सर से वार के 1.25 पाव गोश्त लेकर किसी वीरान जगह पे रखवाएं। इंशाल्लाह नाहल ठीक हो जाएगी, परेशान ना हो। अभी थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा स्टार्स के हवाले से भी वक्त जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह। जनाब आप वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और जो बाकी हमारे स्टार्स रहते हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और ब्रेक से पहले जैसे कि हम स्टार्स के हवाले से बात कर रहे थे और कॉलर्स भी हम साथ साथ ले रहे थे। अब दाऊद जी से कहेंगे कि कंटिन्यू करें, अपने स्टार्स कंप्लीट करते हैं, उनका वीकली पूरा वीक कैसा रहेगा उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ अगर कॉल्स आएंगे तो यकीनन हम कॉल्स भी ले रहे होंगे। जी दाऊद जी। हमारे पास नेक्स्ट Gemini। हॉरोस्कोप है जेमिनी का, जो है हम देखते हैं थीम ऑफ द वीक जेमिनी वालों का इस वीक का, ये जो वीक जा रहा है इस वीक का जेमिनी वालों का थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा। तो जेमिनी वाले जो है अपने पैसे से मुतल्लिका, रिज़्क से मुतल्लिका मामलात में थोड़ी सी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं। 2-3 ऑप्शन आपके पास मौजूद भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने फोकस किया हुआ है। एक शोबा है जो आपका चल रहा है, उसके ऊपर आप तवज्जो किए हुए हैं। आपको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाने का चांस हो सकता है। तलबा तालबात के लिए भी बाहर जाना जो है वो बेहतर आता है, मगर कोशिश करें नेगेटिविटी आप ना आने दें। कोई भी काम कर रहे हैं कोशिश करें उसमें जो भी काम करें पॉजिटिव तरीके से करें। और इस वीक में आपको गाइडेंस लेना बड़ा अहम ज़रूरी होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से गाइडेंस लेंगे तो भी आपको काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। 40-50 रुपए बतौर सदका आप ज़रूर दें अल्लाह ताला के रास्ते में, ताकि मामलात में बेहतरी हो। जो नेगेटिविटी आएगी इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ें। पानी के ऊपर दम करके आप पी सकते हैं। सैटरडे वाले दिन आप येलो कलर की किसी चीज़ का भी सदका कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके हक में बेहतर रहेंगी। ठीक है, ठीक हो गया। जेमिनी के हवाले से था। अगले स्टार की तरफ बढ़ेंगे जो कि कैंसर है, और कैंसर के हवाले से बता रहे होंगे कि कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। कैंसर वालों का हम देखते हैं जी, कैंसर वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक कैंसर। कैंसर वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक काफी पॉजिटिविटी रहेगी। इस वीक में शादी से रिलेटेड मामला, जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मामला रुके हुए थे, कोई ना कोई बात चल सकती है और कोई जॉब ऑप्शन आ सकती है। रिज़्क के मामला जो है वो ठीक होते हुए आप लोगों के नजर आते हैं। रूहानी सुकून महसूस करेंगे आप लोग और फीलिंग्स काफ़ी बेहतर रहेंगी आप लोगों को। वाइट कलर की किसी भी चीज़ का सदका, और इस वीक में वाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहन भी सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक आप आसानियाँ देखेंगे। और इस वीक में जो बेहतरीन दिन आप लोगों के लिए जुमा और हफ्ता का दिन रहेगा। इस दिन आपके मामला बेहतर हो सकें। घरेलू खवातीन के लिए बड़ा कमाल का दिन है। अपनी घरेलू सेटिंग काफ़ी बेहतर करते हुए नजर आते हैं, बच्चों को पूरा ख्याल रखते हुए नजर आते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके कामों में काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद महसूस होगी। इस पूरे वीक में अपने मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप लोग सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। 21 मरतबा 21 टाइम जरूर पढ़िएगा, ताकि मामलात में बेहतरी रहे और अल्लाह की मदद भी आती रहे। ठीक है, ठीक हो गया। ये भी हमने कैंसर के हवाले से आपको बताया। अब चलेंगे अगले स्टार की जानिब जो कि लियो, और अब लियो के हवाले से बता रहे होंगे कि ये उनका हफ्ता कैसा रहने वाला है। जी, लियो वालों का इस वीक का, ये जो वीक जा रहा है इस वीक का लियो वालों, सियारा शम्स वालों का थीम ऑफ द वीक हम लियो वालों का इस वीक का देखते हैं। तो लियो वाले जो नेगेटिविटी का शिकार थे उसमें थोड़ा सा डबल माइंडेड थे, कंफ्यूजन चल रही थी आपको अपने कामों से मुतल्लिका। और ये जो कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपको चल रही थी वो ठीक होती हुई नजर आती हैं। आप अपने मामलात के ऊपर पूरी तवज्जो करिएगा, फोकस रखिएगा। कहीं काम कर रहे हैं तो देखिएगा आपके इर्द गिर्द के लोग क्या आपके साथ सही तरीके से मामला चला रहे हैं या नहीं चला रहे। और जो आप कंफ्यूज हैं मामलात को लेकर, उसके ऊपर पूरी कंसंट्रेशन करिएगा। इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं, हालात की खराबी नहीं रहेगी। और पानी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा, वॉक कीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। आपका पॉजिटिव रहना आपके मामलात को तकलीफ देता हुआ नजर आता है। पॉजिटिव रहने से आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है। जी जी। और ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका आप लोग मंगल के दिन, ट्यूसडे को कर सकते हैं। और इस वीक में मामलात की मज़ीद बेहतरी के लिए आयत करीमा 41 टाइम अल्लाह की तरफ ध्यान करके जरूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। अगले स्टार की तरफ चलते हैं जनाब। अगला स्टार है हमारा वर्गो। वर्गो हाँ जी, विर्गो का इस वीक का हम थीम ऑफ द वीक देखते हैं। विर्गो वालों का इस वीक का
थीम ऑफ द वीक। अच्छा, इस तरह जनरल अगर स्टार की बात करें तो बहुत सी चीज़ें आपको बहुत सी हिंट मिलना शुरू हो जाती है ना कि आपका वीक कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज़ ये होती है कि जो चीज़ बता दी जाती है वो हरफन नहीं होती। कुछ आइडियाज़ आपको स्टार्ट से लेके बताए जाते हैं जिसके मुताबिक आपका वीक कैसा रहेगा। बाकी नाम, और जैसे दाऊद जी आपका नाम पूछते हैं, आपके मदर का नाम पूछते हैं, तो आपको एग्जैक्ट चीज़ आपके बारे में बताई जाती है। उसमें भी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, जितना अल्लाह ने इल्म दिया होता है उसके मुताबिक हम आप लोगों को बता रहे होते हैं। जी दाऊद जी, हो गया आपका स्टार्ट? आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रही होती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। कई लोग जो है वो देखो, इल्म की हद तक तो हकीकत है, इल्म अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और हर चीज़ का इल्म है। जिस तरह मेडिकल साइंस को पहले गलत समझा जाता था, अब लोग जो है वो मेडिकल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और पहले जो हुक्मा को अहमियत दी जाती थी, वो कहते थे कि पहले इस तरह भी होता था कि पिक्चर खिंचवाना जो है बड़ा गुनाह समझा जाता था। अब तस्वीर खिंचवाए बगैर आप हज और उम्रा भी नहीं कर सकते। इल्म की हकीकत होती है, इल्म को हर दौर में माना जाता है। हम इसको सितारों को ऐसे इल्म तो लेते हैं, इसको ये ऑथेंटिक चीज़ 100% अल्लाह ताला के हाथ में है और गायब का इल्म अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही जानते हैं। और अल्लाह जिसको चाहें, जिस बंदे को चाहें तदारक दे सकते हैं। तो हमारे पास है विरगो बुर्ज सुमला वाले, आप लोगों के मामलात में काफ़ी इस वीक में बेहतरी रहेगी। आप सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं, आपको कोई पैगाम मिल सकता है। शादी जिन लोगों की नहीं हुई उनको शादी से मुतल्लिका कोई पैगाम मिल सकता है। काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी नज़र आती है, चीज़ें आपकी बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। जो कन्फ्यूजन चल रही थी कामों से मुतल्लिका, वो आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। हालात में बेहतरी नज़र आती है और मज़ीद इन हालात की बेहतरी के लिए आप लोग जो है वो जुमा वाले दिन वाइट कलर पहनकर आप तीसरा कलमा उसकी तस्बीह अगर करेंगे तो आपको रूहानी मामलात और कामों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको महसूस होगी। मामलात की मज़ीद बेहतरी के लिए आप लोग रोज़ाना या अलियू या वारिसु पढ़िएगा, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। और आप लोग इस वीक में अगर आपको जेमस्टोन बताऊं तो अकीक जेमस्टोन भी आपके मामलात में बेहतरी लाता हुआ नजर आता है। 100% करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर आपके मामलात में इस वीक में अल्लाह ताला काफ़ी हद तक आसानियाँ पैदा करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अगले स्टार की तरफ चलते हैं जनाब। अभी बात कर रहे थे हम वर्गों के हवाले से और अगला स्टार है लिब्रा। अभी आपको लिब्रा के हवाले से बता रहे हैं। हमारे पास लिब्रा वाले 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। लिब्रा वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक, लिब्रा वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक। लिब्रा वाले अपने काम को चेंज करना चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। जो आप एक तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा और तब्दीलियाँ आपके मामलात में काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ आएंगी। काम आपके पास मौजूद हैं, शायद उनकी सही प्लानिंग करके आप नए काम की तरफ जा सकते हैं। घर तब्दील हो सकता है, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप नए जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आप अपना शोबा तब्दील कर सकते हैं। तो लिब्रा वाले इस वक्त तब्दीलियों की तरफ जा रहे हैं। ये तब्दीलियां पॉजिटिव ही रहेंगी क्योंकि आप अच्छी गाइडेंस और अच्छे मशवरे के साथ जाते हुए नजर आते हैं। और ब्लैक कलर जो है इस वीक में आपको सूट करता भी नजर आता है और ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका भी दे सकते हैं। आप लोग आयतुल कुर्सी आप लोग पढ़ सकते हैं अपने मामलात की बेहतरी के लिए। पानी के ऊपर दम करके 11 मरतबा 7 दिन आप आयतुल कुर्सी इशा के बाद जरूर पीजिएगा ताकि चीजें बेहतरी की तरफ चली इंशाल्लाह जी, बेहतरी की तरफ जाएंगी चीजें। और जैसे आपको मुख्तलिफ आयत करीमा बता रहे हैं, मुख्तलिफ आयत अल्लाह का जिक्र बता रहे हैं और अल्लाह के नामों का जिक्र जो बता रहे हैं, वो उसका मतलब यही होता है कि अगर आप उनका जिक्र अज़कार कर रहे होते हैं तो चीजें आसान होना शुरू हो जाती है। बढ़ते गए स्टार की जानिब, अभी हमारे स्टार बाकी हैं। जी लाजमी आपने सही कहा। देखें 100% पूरे कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला के हाथ में है और जब आप किसी भी मुश्किल को सामने रख के अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें अपनी खैर व बरकत और आसानियाँ पैदा कर देते हैं और अल्लाह की तरफ से सारा कुछ होता है। हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो है। जी हाँ जी, स्कॉर्पियो के इस वीक का जो है वो थीम ऑफ द वीक देखते हैं कि स्कॉर्पियो के इस वीक का थीम ऑफ द वीक स्कॉर्पियो का क्या है। तो स्कॉर्पियो वाले आप लोग जो मामलात कर रहे हैं वो आप तक ही महदूद हैं, यानी कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि जो आपके माइंड में चीज़ चल रही है वो आपने अपने तक रखी हुई है। और जो आपके इस वक्त पैसे के इशू आए हुए हैं और कामों से मुतल्लिका जो भी आपके मामला जो चल रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा मुआशी हेल्प चाहिए। अगर आप घर में हैं तो अखराजात बढ़े हुए हैं आप लोगों के और थोड़ा सा जो है कंफ्यूज
कामों में जिस स्पीड के साथ मदद आ रही थी वो मदद उस लेवल की नहीं है जी। इस मदद को मजीद बढ़ाने के लिए 313 मरतबा आयत करीमा जरूर पढ़िएगा। और सैटरडे वाले दिन आप लोग किसी ब्लैक कलर की चीज, काले माश होते हैं, उनका सदका दे सकते हैं। अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखें, इंशाल्लाह ताला काफी हद तक बेहतरी। दाऊद जी, हमारे पास टोटल 5 मिनट है, उसमें हमने 4 अभी स्टार्स हैं कंप्लीट करने हैं। यकीनन आप 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। जी इंशाल्लाह हम 2 मिनट में आपके 4 स्टार पूरे कर देंगे। नहीं, आप 5 मिनट में ही कीजिए। 4 मिनट में कर लें, 4 मिनट में कर लीजिए। सेजिटेरियस वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक हम चलते हैं। सेजिटेरियस वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक, सेजिटेरियस वाले इस वीक में आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। वालदा की तरफ से मदद मिलती हुई नजर आती है, हेल्प। और जो पहले डिस्टर्बेंस थी अब वो डिस्टर्बेंस खत्म होती हुई नजर आती है। और पैसों के इशू भी हल होंगे और आपको जो है वो आउट सोर्सेज से, यानी कि किसी दोस्त से, किसी इर्द गिर्द के बंदे से हेल्प मिल सकती है। पीर और मंगल थोड़ी सी बड़े कामों में हाथ न डालें, बाद के दिनों में आपको मदद महसूस हो जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। घरेलू खवातीन के लिए कमाल का ये वीक है, तुलबा तालबात के लिए भी कमाल का। सेहत का जरूर ख्याल रखें और सेहत में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। कैप्रिकॉर्न वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक हम देखते हैं जी। कैप्रिकॉर्न वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक क्या है? तो कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में बहुत नए आइडियाज और नई चीजें लेके आएंगे, काम करते हुए नजर आते हैं। काफी हद तक तब्दीलियां, और ये पीर और मंगल का दिन कैप्रिकॉर्न वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मगर आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास सोच है, और ये आप इस वीक में कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई सोच आ सकती है, नए मामलात में मदद आ सकती है, हालात में बेहतरी नजर आती है। व्हाइट कलर और रेड कलर का इस्तेमाल जरूर करिएगा। रेड मैंने और अच्छा आपका है, चलो ठीक है, कमाल की बात है। और इस वीक में मामलात की मजीद बेहतरी के लिए आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जरूर पढ़िएगा। कुछ नेगेटिविटी आपके हासदीन की तरफ से आ सकती है। इसके बाद हम चलते हैं एक्यूरियस बुर्ज दिलों वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक क्या बनता है। एक्यूरियस वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक, तो एक तो ये कि आपको अल्लाह ताला ने बड़ी जो है कुव्वत इरादी का मालिक रखा हुआ। आपके पास जो भी चीज़ें आती हैं बुर्ज दिल और एक्यूरियस वालों के लिए नेगेटिविटी, वो आप अपने जज्बे, अपनी हिम्मत और हौसले से उसको दूर करते हैं। मगर ये है कि आपको मजीद बढ़ना है, आपने अपने हालात को मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अखराजात की आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, कामों की काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। आप अपनी तरक्की को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की को मजीद बढ़ाइएगा ताकि आपके मुआशी और माली मामला ठीक हो सकें। घरेलू माहौल में बहुत आपके अखराजात होते हैं, इस वक्त आपके पैसों के इश्यूज आ सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए आप लोग जो है सूरह इखलास 21 मरतबा जरूर पढ़ें ताकि माली मामलात में मदद रहे। हमारे पास लास्ट हॉरोस्कोप है पाइसिस वालों का इस वीक का हम जो है वो थीम ऑफ द वीक देखते हैं कि पाइसिस वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक क्या बनता है। तो पाइसिस वाले रिलेशन से मुतल्लिका, शादी से मुतल्लिका मामलात के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मामलात की बेहतरी के लिए पाइसिस वाले इस वीक में आयतुल कुर्सी पानी के ऊपर दम करके पिए, मगर यह है कि आपके पास जो भी नेगेटिविटी आए उसको आपने अपने ऊपर नहीं सवार करना। डिटेल में अगर आप लोग अपनी हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल्स पे भी ये सर्च कर सकते हैं, हमने बड़ा डिटेल के साथ दिया होता है ताकि जो चीजें या जो पढ़ाई या कोई जेमस्टोन करना हो वो बेहतरी की तरफ। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया दाऊद जी आपके कीमती वक्त का। और इसी के साथ मुझे और राफिया कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शो के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।